औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are welcomed by the Board of Management, staff and on my own behalf in Friends Public School, Tonsashif. Dear students, you have already studied the definition of science, introduction of biology, details of main divisions of biology and the different branches of biology in our previous lectures, which were delivered by Sir Zishan Haider Sahab. Today we are studying about the interdisciplinary sciences. I am Abdul Shakur with the subject biology for your services from Friends Public School, Tonsa Sharif. Today we are studying about interdisciplinary sciences. First of all, I would like to introduce what are interdisciplinary sciences. In the early ages, science was considered only single knowledge. With the passage of time, this subject, it means science was divided into different branches. And all branches have relations with one another. All branches have relations with one another. These branches, for example, I would like to consider of example subject biology. Biology is a branch of science in which living things are studied. The study of life, the study of living things, the study of living objects, the study of living substances is called as biology. And this biology has a relation with the other branches of science. This biology has many informations. About various aspects of life. Things. For example, if we want to study or observe the movement of an animal, we have to refer the laws of motion. Laws of motion are also related with the subject physics. So, biology and physics has some relations. इसी तरह केमिस्ट्री के साथ, इसी तरीके से मैथ के साथ, इसी तरीके से ये है इकोनॉमिक्स के साथ, जियोग्राफी के साथ, स्टैट के साथ, साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये सारी ब्रांचेस बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है. हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी मे से द इंटर रिलेशनशिप among the different branches of science is called as interdisciplinary sciences or या bainul hudud sciences. Interdisciplinary sciences की definition यूं बनेगी, the relationship
Definition of interdisciplinary sciences is the relationship among different branches of science is called as interdisciplinary sciences. For example, जब बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ एक ताल्लुक कायम कराया जाएगा तो बायोफिजिक्स बनेगी। बायोलॉजी का जब केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा तो बायोकेमिस्ट्री बनेगी। इसी तरीके से बायोलॉजी का जब मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा तो बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स या इसे बायोस्टेट भी कहते हैं, बायोस्टेट बनेगा, बायोमेट्री बनेगा, बायोमैथमेटिक्स बनेगा। इसी तरीके से जब हम बायोलॉजी का ताल्लुक जियोग्राफी से जाहिर करते हैं तो बायोजियोग्राफी बनता है, और इकोनॉमिक्स के साथ जब हम बायोलॉजी का ताल्लुक जाहिर करते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की शाख जन्म लेगी जिसे हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देंगे। आज हमने यही ब्रांचेस स्टडी करनी है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स। व्हाट इज अ बायोफिजिक्स? पहली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो बायोलॉजी और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास बायो, इसके साथ जब हम रिलेशन कायम करते हैं फिजिक्स का तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ब्रांच सामने आती है उसे कहते हैं बायोफिजिक्स। बायो दरअसल स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, और फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी है। अगर हम देखें जानदारों के जिस्म के अंदर तवानाई के जरिए होने वाले मुख्तलिफ जो प्रोसेस है, अवामिल है, उनका मुताला अगर किया जाए तो इस तरीके से साइंस की दो शाखें आपस में एक ताल्लुक कायम करती हैं। इनसे जो जन्म लेती है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, उसे नाम देते हैं बायोफिजिक्स का। बायोफिजिक्स डील्स विद द, इट डील्स with the principles of physics फिजिक्स के उन उसूलों के साथ यह ताल्लुक रखती है विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, जिनका ताल्लुक बायोलॉजिकल मज़ाहिर पे या जानदारों के प्रोसेस पे या जानदारों के अवामिल पे होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable to biological phenomena। इसकी हम एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, there is similarity in working principle of limbs of animals in biology and
principles of liver in physics. Biophysics, the branch of interdisciplinary science which deals with the principle of physics which are applicable on biological phenomena. For example, there is a similarity in working principles of limbs of animals in biology, because animals belong to the study of life is called biology. Animals belongs to biology, and the principles of liver in physics, there is a similarity. So interdisciplinary science give rise from the combination of biology and physics, which is known as biophysics. Next one is biochemistry. The branch of interdisciplinary science which is formed by the combination, by the relationship, by the interaction of biology and chemistry, known as biochemistry. Known as biochemistry. This interdisciplinary science deals with the chemistry of compounds, and chemical reactions occurring in living organisms. Biochemistry, which is formed by the interrelationship of biology and chemistry. This interdisciplinary science deals with the chemistry of compounds and chemical reactions occurring in the living organisms. For example, मिसाल के तौर पे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड बेसिक स्टडी ऑफ photosynthesis, different types of metabolisms, basic metabolism of photosynthesis and respiration occurring in living things. Need the study of chemistry. जानदारों के अंदर जो बुनियादी मेटाबॉलिज्म है फोटोसिंथेसिस का, प्लांट्स के अंदर हमेशा फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट, क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक कंपाउंड बनता है जिसे हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेशन जो जानदार सरंजाम देते हैं, इसमें यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है
और दोबारा एनर्जी इस्तेमाल की जाती है जिसे जानदार अपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी की सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस और इसी तरीके से पाई जाने वाली वो तमाम मेटाबॉलिज्म की सूरतें जो जानदारों में हैं, जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं और टूटते हैं, ये सारा का सारा दारोमदार केमिस्ट्री के इल्म पे है। केमिस्ट्री का इल्म और फिजिक्स दोनों आपस में मिलके जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनाते हैं उसे नाम दिया जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री बायोलॉजी और मैथ जब आपस में मिलते हैं तो इनसे जन्म लेने वाली जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है इसे कहते हैं बायो मैथमेटिक्स, या इसे बायोमेट्री भी कहते हैं, और इसी को बायोस्टेट भी कहते हैं। यह बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इट डील्स विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस। Processes using mathematical techniques and tools, जिसमें रियाजियाती की टेक्निक्स और इनकी अशिया को इस्तेमाल किया जाता है। इस बायो और मैथ से जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जन्म लेती है इसे बायोमैथमेटिक्स कहते हैं, बायोमेट्री भी कहते हैं और इसे बायोस्टेट भी कहते हैं। दिस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस डील्स विद द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस using mathematical techniques and tools. For example, मिसाल के तौर पे बायोलॉजिस्ट एनालाइज the data gathered after experimental work. एक बायोलॉजिस्ट जब एक तजर्बाती काम के बाद एक मवाद, आदात और शुमार इकट्ठे करता है तो उनका तज्जिया करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसे रियाजियाती उसूलों का, शुमारियाती उसूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक बायोलॉजिस्ट को, एक पैथोलॉजिस्ट को, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, जो एग्जामिन करता है मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों को जिनमें अगर कोई डिजीज वगैरह देखनी होती है, उसे पैथोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है।
मिसाल के तौर पे एक पैथोलॉजिस्ट ब्लड स्टडी करना चाहता है, सबसे पहले वो देखता है कि कौन कौन से कितने अफराद मेरे पास आए हैं, उनकी तादाद को वो रियाजियाती असूलों के मुताबिक काउंट करता है। मिसाल के तौर पे उसके पास 200 अफराद है, 200 पर्सन्स, का ब्लड उसने स्टडी करना था। उसने जब ब्लड को स्टडी किया तो उनमें 50 पर्सन्स वर डिक्लेयर्ड पेशेंट and 150 were declared healthy person. एक बायोलॉजिस्ट जब 200 अफराद के खून के नमूनों का मुताला करता है, मुताला करने के बाद उसने देखा कि 50 लोग ऐसे हैं जो मरीज हैं, किसी बीमारी में मुब्तला है। हम एग्जांपल ले सकते हैं मलेरिया की, कि वो मलेरियल पेशेंट थे, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया था। जबकि 150% वो थे जिनके ब्लड के अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं था, कोई डिजीज मौजूद नहीं थी, उन्हें हेल्थी डिक्लेयर करार दिया गया। अभी वो अपने इस एक्सपेरिमेंटल वर्क को समराइज करता है। समराइज करने के लिए 50 और 150 के हिस्से, ये दोनों या 200 का हिस्सा ये रियाजी से लेता है, मैथ से लेता है, और इनको समराइज करने के लिए ये स्टेट का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे रेशो और प्रोपोर्शन जैसे टेक्निक्स को इस्तेमाल में लाता है और फिर इन्हें मजीद मुख्तसर करता है। 1:3। इस हिसाब से एक बायोलॉजिस्ट को रियाजियाती टेक्निक्स और रियाजियाती उसूलों का अपने काम की वजाहत के लिए इस्तेमाल करना होता है। इसे बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री या बायोस्टेट का नाम दिया जाता है। इससे आगे वाले जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है उसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी और बायोलॉजी से जन्म लेने वाली जो शाख है इसे बायोजियोग्राफी का नाम दिया जाता है। It deals with the occurrence and distribution of different species of living organisms. Occurrence and distribution of living organisms in different geographical region of the world. दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाली जानदारों की मुख्तलिफ स्पीशीज की मौजूदगी और उनके फैलाव से इसका ताल्लुक है। और ये वाली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस वहां पे पाए जाने वाले जानदारों की खसूसियात के मुताले से भी ताल्लुक रखती है, और वहां पे पाई जाने वाली जो मट्टी, माहौल, पौधे, जानवर, सारी चीजें हैं, उनके मुतालिक भी हमें मालूमात देती है
कि उनके खवास, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसकी एग्जांपल मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम हिली एरियाज में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने हैं। यहां पे पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने हैं। अगर आपने कभी नदरन एरियाज में सैर की है तो वहां पे पाए जाने वाले जानवर, उनके जिस्म के ऊपर फर ज्यादा होती है। वहां पे पाए जाने वाला प्लांट्स सदाबहार होते हैं, यानी वो लो टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अगर लैंड एरियाज में आए, मैदानी इलाकों में, यहां पे पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं। इसी तरीके से डेजर्टेड एरियाज में पाए जाने वाले जानदार, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होती हैं। बायोजियोग्राफी दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफियाई खित्तों में पाए जाने वाले जानदार और उनके फैलाव से ताल्लुक रखती है। और लास्ट वन जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, इसे कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। के कॉम्बिनेशन से जन्म लेने वाली बायोलॉजी की शाख बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इस बायो इकोनॉमिक्स में जानदारों का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुताला किया जाता है। दिस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस डील्स with the living things according to economical point of view। माशी नुक्ता निगाह से जानदारों का मुताला किया जाता है। यहां पे लॉस और प्रॉफिट मालूम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक किसान है, फसल काश्त करने के लिए वो अपने खेतों में हल चलाता है। हल चलाने का खर्चा वो अपने पास नोट करके रख लेता है। उसके बाद वो बीज इस्तेमाल करता है। उसने मार्केट से जितना बीज खरीदा है उसकी कीमत उसने अपने पास नोट करके रख ली है। उसके बाद उसने ट्यूबवेल वाले से पानी खरीद करके अपनी फसलों को दिया है, वो वाला हिसाब अपने पास वो नोट करके रख लेता है। फिर उसने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है, फर्टिलाइजर्स के साथ उसकी फसल तैयार हुई है, उसने कटाई करवाई है। कटाई करवाने के बाद उसने अपनी पूरी फसल को लोड करवाया है, लोड करवा के वो मंडी तक लेकर गया है। मंडी पे जाके उसने अपने उस फसल को फरोख्त किया है सॉरी बेटा, उसने अपने फसल को फरोख्त किया है। उसकी जितनी लागत थी और जितनी फरोख्त हुई है उनका वो मुवाजना करेगा। फिर नफा और नुकसान की बुनियाद पे वो हिसाब करेगा, आया मुझे नफा हुआ है या नुकसान हुआ है। क्योंकि प्लांट्स भी जानदारों में शामिल है। इसी तरीके से एक शख्स पोल्ट्री फार्म बनाता है, कैटल फार्म बनाता है, फ्रूट फार्म बनाता है, वो सारा का सारा हिसाब कर लेता है। जब जानदारों का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुताला किया जाता है तो इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी दोनों आपस में ताल्लुक रखती हैं। इनसे जो जन्म लेने वाली साइंस की शाख है इसे कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। बेटा आखिर पे मैं अपने इस पूरे सबक का लेसन का समअप करना चाहूंगा। हमारी बात हुई थी बायोलॉजी से। अगर हम बायोलॉजी को देखें, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है।
जब बायोलॉजी फिजिक्स के साथ ताल्लुक रखती है इनके दरमियान में जब रिलेशन होता है जानदारों में बोन्स और मसल्स की हरकत की मूवमेंट के लिए फिजिक्स के उसूल इस्तेमाल होते हैं, लॉज ऑफ मोशन या प्रिंसिपल ऑफ लिवर। इस तरीके से जो साइंस की शाख जन्म लेती है इसे कहते हैं बायोफिजिक्स। और फिर जब केमिस्ट्री के साथ ये ताल्लुक कायम करती है जानदारों में फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन के अवामिल का मुताला किया जाता है। इस तरफ से जानदार बायोलॉजी के और इस तरफ से मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में वकूफ पजीर होते हैं, इस तरीके से जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जन्म लेती है इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और जब मैथ बायोलॉजी से ताल्लुक कायम करती है तो यहां पे डाटा एनालिसिस किया जाता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। इस तरीके से जो शाख इंटरडिसिप्लिनरी जन्म लेती है इसे कहते हैं बायो मैथमेटिक्स। इसे बायोमेट्री या बायोस्टेट भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं। इस तरीके से जब जियोग्राफी के साथ ताल्लुक कायम कराया जाता है यहां पे मुख्तलिफ स्पीशीज जानदारों की अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो बायोलॉजी की जो शाख जन्म लेती है इसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। और जब इकोनॉमिक्स से इसका ताल्लुक कायम कराया जाता है यहां पे प्रॉफिट और लॉस की बात होती है तो उस वक्त जो साइंस की शाख जन्म लेती है इसे कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स।
साइंसेस। यहां तक बेटा आज की हमारी बात है। बायोलॉजी का साइंस के मुख्तलिफ उलूम के साथ, साइंस की मुख्तलिफ शाखों के साथ ताल्लुक बनता है। इस तरीके से जो साइंस की शाखें जन्म लेती हैं उन्हें इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस का नाम दिया जाता है। बेटा आज की बात यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में इससे आगे। अल्लाह हाफ़िज़।